Hello students, how are you? Welcome to my channel Creative Academy Anand. My name is Anush sir and today we are going to start new chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Trust me students, after watching this video, you will never have confusion between coincident lines, parallel lines and intersecting lines. Okay, this chapter is very important for upcoming board examination. So try to understand everything and make a short note on this chapter after watching this video. Okay, so let's start chapter number 3, pair of linear equations in two variables. So starting with general equation क्या है इसका ax plus by plus c equal to 0 where x and y are variables and a b c are constant, right? So यहाँ पे x and y दोनों वेरिएबल है, राइट? x and y वेरिएबल है and a b c are constant. पुट डाउन एनी आर्बिट्ररी नंबर्स a b c की कोई भी एक वैल्यू, कोई भी तीन वैल्यू ले लो, लेट्स से 2 3 एंड 5. सो आपका जो इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 3x 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, उसको हम बोलेंगे दिस इज अ लिनियर इक्वेशन. यहाँ पे कोई भी पावर नहीं होगी, पावर एक ही होगी, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 ही रहेगी. ओके, और उसको हम लिनियर इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि इसका ग्राफ हमें लाइन मिलेगा. इसका ग्राफ हमें अगर हम प्लॉट करें तो लाइन मिलने वाला है. ओके, सो here one graph is given. This is for line ax plus by plus c equal to 0. ओके, तो उसका ग्राफ ऐसा एक लाइन मिले, ऐसा ही नहीं कि यह ऐसे स्लोप में ही मिले. स्लोप कोई भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट हो सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है लाइन, मतलब कोई भी टाइप की लाइन हमको यहाँ पे मिल सकती है फॉर लिनियर इक्वेशन. ओके, सो इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0. Okay, now we are moving. Now students, what was the name of the chapter? Pair of linear equations in two variable, right? So we know that if two equations are given together, then it is known as pair of linear equation. So here two line equations are given, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Okay, so relationship between this intersecting lines, parallel lines and coincidence lines depends on this condition. Okay, so what are the conditions? Okay, so for intersecting lines, if a1 upon a2, okay, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, right? So here a1 and b1 are coefficients of x and y of first line equation, right? And a2 and b2 are coefficients of x and y of second line equation, right? So you have to check a1 upon a2 and b1 upon b2, दोनों का रेशियो ले लो, और दोनों का रेशियो अगर सेम आए तो इधर वो पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन हो सकते हैं. ओके, और अगर सेम नहीं आ रहा है, if they both are not same, then a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. You don't have to check c1 upon c2. So only check whether a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then it is called as intersecting line and you have only one solution. ओके, इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, और इसको हम कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट लाइंस. ओके, सो if two line have their solution, ओके, कोई भी एक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले, सिर्फ सॉल्यूशन मिलने चाहिए. अगर कोई भी दो लाइन के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे these two lines are intersecting and these lines have only one solution. Okay, or in coincident line there are infinitely many solutions. Okay, there are infinitely
many solutions. So we can call intersecting lines and coincident line as a consistent lines. Okay, हम intersecting lines और coincident line को consistent line बुला सकते हैं. Okay, where parallel lines has no solution. Okay, parallel lines में कोई solution नहीं मिलता है. So these lines are called as inconsistent lines. Okay, parallel lines को हम inconsistent lines बोलेंगे. Okay, so these are the conditions of intersecting lines. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, then it is called as intersecting lines. Only one solution मिलेगा उसमें और उसको हम consistent line भी बोलेंगे. Yes or no? Okay. उसके बाद parallel lines. Parallel lines you must have checked all three ratios: A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. If A1 upon A2 and B1 upon B2 are same and C1 upon C2 is not same. Okay, फर्स्ट टू कोएफिशिएंट का अगर रेशियो सेम निकला और तीसरे का सेम नहीं आया तो उसमें वो लाइंस हमें पैरेलल लाइंस है ऐसा बोल सकते हैं. उसको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे. ओके, और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन, क्योंकि वो कोई कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, आगे जाके भी नहीं करेगा, इसीलिए उसको हम उसको बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइंस have no solution, no real solution, right? और उसको हम inconsistent line भी बोलेंगे. Okay, so parallel lines are always inconsistent lines. Okay, और last coincident lines. Okay, coincident lines मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी. Okay, so coincident lines में आपको फिर से you have to check all three ratios: A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Okay, if all three ratios are same, then you can say the lines the given lines are coincident lines. The given lines are coincident lines, and these lines have infinitely many solutions. Okay, this line have infinitely many solutions. Okay, और उसको हम consistent lines भी बोलेंगे. Right? Okay, so this table is exam favorite. Examiner can ask directly questions from this table. Now let's start with examples, students. So here two lines equations are given: 3x minus 5y plus 7 equal to 0 and 9x plus 15y plus 14 equal to 0. So यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको ये दो लाइन पूछेंगे और दो लाइन के ऊपर से आपको ये बताना है कि गिवन लाइंस आर वेदर इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस, राइट? और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये दोनों लाइंस कंसिस्टेंट लाइन है और इनकंसिस्टेंट लाइन है. ओके, सो इसके लिए हमें फिर से A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 चेक करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट A1 upon A2. हियर A1 is 2, 3 sorry and A2 is 9. So A1 upon A2 3 upon 9, 3 3s are 9 और आपका आंसर 1 upon 3 आएगा. और B1 upon B2 के लिए B1 है -5, B2 है +15. सो B1 upon B2 -5 upon 15, 5 3s are 15. यहाँ पे आंसर -1 upon 3 आएगा, राइट? ओके, सो आपको ये याद रखना है जब भी आप कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज रखो रेशियो में तो प्लस और माइनस, जो भी प्लस और माइनस हो, सपोज यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -5 लिखना कंपलसरी है. अगर आप +5 लिखते हो तो आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा. सो -5/15 यहाँ पे आंसर आ रहा है -1/3. ओके, ऑल्दो यहाँ पे 1/3 आ रहा है दोनों में, लेकिन साइन में डिफरेंट आ रहा है. साइन दोनों की अलग है, एक में प्लस है और एक माइनस है, मतलब दोनों साइन ऑपोजिट साइंस आ रही है. सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है. A1 upon A2 is not equal to B1 upon
B2, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं वो वाला टेबल देखे तो उसमें फर्स्ट कंडीशन ही मैच हो जा रही है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और आपको ये भी पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन हमें ऑलवेज मिलेगा। ओके, सो इसको हम कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलेंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, 8x minus 4y plus 11 equal to 0, minus 24x plus 12y minus 22 equal to 0। यहाँ पे हम a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 चेक करेंगे। ओके, सो a1 upon a2 है 8, a1 है 8 और b है b1 a2 है minus 24, 8 3s are 24, here ratio is minus 1/3। okay, then b1 upon b2 minus 4 upon 12, 4 3s are 12 and the ratio is minus 1/3। okay, and 11 upon minus 22, so 11 2s are 22, so ratio is minus 1/2। here a1 upon a2 and b1 upon b2 बोथ आर सेम, मतलब दोनों का आंसर minus 1/3 मिल रहा है, लेकिन c1 upon c2 का आंसर सेम नहीं मिल रहा है। ओके, c1 upon c2 सेम नहीं है, दैट्स व्हाई दिस लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वेरी गुड। ओके, पैरेलल लाइंस। यहाँ पे देख लो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम उसको कौन सी लाइन बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस को हमको इनकंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं, राइट। सो इसको हम पैरेलल लाइंस, इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट लाइंस। सॉरी, okay, right, now let's go with another example। a1 upon a2, यहाँ पे दो लाइन दी है, 4x plus 3y minus 7 equal to 0 and 20x plus 15y minus 35 equal to 0, right? okay, so here a1 upon a2, a1 is 4 and a2 is 20, so 4 5s are 20, your answer is 1 upon 5। b1 upon b2, 3 upon 15, 3 5s are 15 and your answer is 1 upon 5। c1 upon c2, c1 upon c2 में फिर से याद रखो, यहाँ पे ये जो c1 है वो -7 है और c2 है वो -35 है, राइट। सो -7 अपॉन -35, दैट इज 7 5s are 35 and answer is 1 upon 5। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो तीनों के तीनों रेशियो, ऑल थ्री रेशियोज आर सेम, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम उसको क्या बोलेंगे? राइट, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, और उसको हम कंसिस्टेंट लाइंस भी बोल सकते हैं। सो कंसिस्टेंट लाइंस के लिए आपको यही याद रखना है कि पैरेलल लाइंस है वो कंसिस्टेंट लाइन नहीं होती है, वो इनकंसिस्टेंट होती है। बाकी की दोनों, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस इज नॉट कंसिडर इनकंसिस्टेंट लाइन, और आप ऐसा भी बोल सकते हो, उसको इनकंसिस्टेंट लाइन भी बोल सकते हो। ओके, राइट। Now we are moving forward to objective type questions. Students, these are some objective type questions are given here. Okay, so these all questions are very important. So if your concept of ratios, intersecting lines, parallel lines and coincident lines का concept आपका clear है, तभी आप ये easily solve कर सकते हो। You can score full marks in this type of question, right? So take your notebook, pause the video after every question and try it by yourself and check whether the answer is correct or not। So starting with first question,
इफ द ग्राफ ऑफ द क्वेश्चंस equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is two parallel lines, then out of the following which is true. डायरेक्टली आपको जो वो मैंने टेबल अभी सिखाया उस पर से डायरेक्टली क्वेश्चन है. ओके, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि उसका आंसर क्या आएगा. पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस के लिए आपको पता है कि a1 upon a2 is not equal to, नहीं सॉरी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. मतलब दोनों पहले के a1 upon a2 और b1 upon b2 का रेशियो सेम आएगा, तीसरे का नहीं आएगा पैरेलल लाइंस के लिए. ओके, पैरेलल लाइंस की जगह पे इंटरसेक्टिंग बोला होता तो फर्स्ट वाला राइट था. अगर पैरेलल लाइंस की जगह पे कोइंसिडेंट लाइंस का बोला होता तो सेकंड वाला राइट, सॉरी सी वाला राइट था. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Out of the following which is the solution of the equation 2x plus 3y plus 7 equal to 7. इसका सॉल्यूशन कौन सा है? सिंपली आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करो जो भी है. जैसे ये है ना 1 1 2 एक पॉइंट दिया है तो फर्स्ट वाली x की वैल्यू होगी, सेकंड वाली y की वैल्यू होगी, राइट. सो फर्स्ट वाली x है, सेकंड वाली y. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करो जिसमें आंसर 7 आ जाए. ओके, आंसर 7 आ जाए 2x plus 3y, इसमें x और y की, जैसे यहाँ पे 2x की वैल्यू 1 और y की 2 लिखेंगे. 2 plus 3 2 6, 6 plus 2 that is 8. सो ये फर्स्ट वाला आंसर नहीं है. मुझे क्या आंसर चाहिए? 7 चाहिए. 7 आंसर आना चाहिए. ओके, सेकंड वाला ले लेते हैं 2 1. सो 2 1 यहाँ पे पुट डाउन करूंगा. 2 2 4 4 plus 3 7 आ जाएगा. ओके, राइट. यहाँ पे अगर मैं 2 1 पुट डाउन करता हूं सो 2 into 2 plus 3 into 1, 2 2 4 plus 3, 4 plus 3 क्या आंसर आ जाएगा? 7. सो 7 आ रहा है तो आपका आंसर है बी. ओके, अगर बी भी गलत होता तो आपको सी भी चेक करना पड़ता, डी भी. आप डायरेक्टली मुंह पे भी ऐसे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज पुट डाउन करके. ओके, राइट. नाउ नेक्स्ट दिया है 5x minus 3y plus 9 equal to 0 and 10x minus 6y plus 18 equal to 0 represents blank lines. ओके, सो यहाँ पे फिर से मैंने बोला था अभी कि आपको कोई भी ऐसा बोल सकता है. यहाँ पे लिखा है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, इन चारों लाइन में से आपको देखना है कि कौन सी लाइन है. ओके, सो पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग के लिए आपको रेशियो ही फाइंड करने हैं. a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2. अगर ये रेशियोस सेम आ जाए, तीनों सेम आए तो कोइंसिडेंट लाइंस, पहले दो रेशियो अलग आ गए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पहले दो रेशियो सेम, तीसरा सेम नहीं है तो पैरेलल लाइंस. तो सिंपली a1 upon a2 करो. यहाँ पे डायरेक्टली आपको मतलब एग्जाम में पूरी मेथड करने की जरूरत नहीं है. a1 upon a2 5 upon 10 that is 5 2 10 1 by 2. b1 upon b2 -3 upon -6 minus cut 3 2 6 that is 1 by 2. and c1 upon c2 क्या है? 9 upon 18. this is 9 2 18 equal to 1 by 2. तो तीनों में रेशियोस कैसे आए? सेम आए. तो अगर रेशियो सेम आ रहे हैं then it is coincident lines. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. तो उसको हम coincident line बोलेंगे, राइट. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है if the solution set of the equations px plus 3y equal to p minus 3 and 12x plus py equal to p is an infinite set then p is equal to blank. आपको यहाँ पे बोला है कि ये दोनों लाइन का जो भी सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट कौन से किस में मिलता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस में मिलता है? ओके, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें कोइंसिडेंट लाइंस में ही मिलेंगे. कोइंसिडेंस लाइंस के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं. दैट मीन्स हमें यहाँ पे पहले से ही
here given that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 है ही, ओके, उस पे से आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? सो नाउ लेट्स से हियर a1 is p, a2 is 12, b1 is 3, b2 is p. सो हम बस पहले ही दो ही कंडीशन ले लेते हैं, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2. a1 क्या है? p और a2 है 12, b1 है 3 और b2 है p. p इंटू p स्क्वायर, 3 इंटू 12, 12 3 जा 36, राइट? ओके, p इक्वल टू अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 के कितने आंसर मिलेंगे? 2 प्लस और माइनस 3, 6. 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 6 प्लस और माइनस 6. सो यहाँ पे माइनस 6 नहीं दिया है, प्लस 6 दिया है, तो हमारा आंसर ए रहेगा प्लस 6. ओके, हाँ, आपको दूसरी जो कंडीशन है उस पे से आपको परफेक्टली आंसर मिल जाएगा कि वो p कैसा रहेगा, प्लस और माइनस. लेकिन यहाँ पे 6 आंसर आ रहा है तो हम डायरेक्टली हम लिख लेंगे 6, लेकिन दूसरा कोई आंसर. नाउ गोइंग टू फिफ्थ इक्वेशन. If 17x plus 23y equal to 40 and 23x plus 17y equal to 18, then x plus y equal to blank. Okay, so some students will try to find out solution of these two linear equations by using elimination methods, substitution methods, and they will find x and y and then put the value of x and y here and then do addition and then they will have the answer. So this is the very long method and this is one type objective type question. Okay, so you have not much time to solve this type of method, solving by this type of method. So here there is a trick. Just add these solutions, equations. 17x plus 23y equal to 40 and 23x plus 17y equal to 80. Just add these two equations. 17x plus 23x, that is 40x plus 40y equal to 80 plus 40, that is 120, right? Okay, divide the equation by 40. So 40x plus 40y equal to 120, divide it by 40. सो 40 40 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी 40 40 कट हो जाएगा, 43 जा. सो x प्लस वाई हमें क्या मिल गया? 3 डायरेक्टली. ओके, तो उसका आंसर आएगा C. ओके, सो याद रखना ये मेथड डायरेक्टली, अगर आपको x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई भी पूछा हो कभी भी, ओके, सो आपको डायरेक्टली ऐड करो और डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो. जैसे यहाँ पे मतलब ऐसे इतने लार्ज नंबर दिए हो ना, तो इसको मतलब याद ही रख लेने का कि यही एक मेथड है जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो दिस इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स गो अनदर वन, 6. तो 6 नंबर में है, इफ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इज 2k. सो एक सॉल्यूशन दिया है, इसका एक सॉल्यूशन दिया है, उसका मतलब क्या कि यहाँ पे x की जगह पे 2 और y की जगह पे k वैल्यू में पुट डाउन करूंगा तो उसका आंसर 0 आएगा. और वी कैन से दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, 2k लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. ओके, सो हम क्या करेंगे कि जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x की जगह पे हम 2 लिख देंगे प्लस 2 एंड y की जगह पे k माइनस 4 इक्वल टू 0. ओके, सो 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 2k माइनस 2 इक्वल टू 0. माइनस 2 उस तरफ जाएगा, राइट हैंड जाएगा, प्लस 2 बनेगा. सो k इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1. सो उसका आंसर आएगा 1. k इक्वल टू 1. ओके, जब भी आपको सॉल्यूशन डायरेक्टली दे दे तो वो सॉल्यूशन जो भी हो उसका x और y की जो भी वैल्यू यहां से मिलेगी वो डायरेक्टली आपको इक्वेशन में पुट डाउन करके आपको जो भी k या m कुछ भी कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया होगा वो कांस्टेंट आप ऐसे निकाल सकते हो उसका आंसर, राइट? याद रखना. ओके,
Now, this is one of the interesting question. The present age of father is X years and the total age of his two sons is Y years. Then the sum of their ages 5 years hence, after 5 years, उसके ages का sum क्या होगा? Okay, so let's try to find out. Okay, so here father's age is X years and two sons age, sum of two sons age Y years. Okay, now after 5 years क्या होगा? After 5 years और 5 years hence. Okay, after 5 years फादर की एज क्या होगी? फादर्स एज will be x plus 5 and two sons age, sum of two sons age, you can say sum of two sons age क्या होगी? मतलब ये y है, दो बच्चों के एज का सम क्या होने वाला है? तो आप ये समझो कि सपोज एक का एज ए है और दूसरे का एज बी है, दो बच्चे हैं, तो उसमें से एक सन का एज ए है, दूसरे सन का एज बी है. आफ्टर 5 इयर्स इसका भी 5 इयर्स ऐड हो जाएगा क्योंकि वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा. तो दोनों का सम ए प्लस बी हमें वाई दिया था, तो दोनों का सम ये 5 प्लस 5 10 होगा. तो यहाँ पे आफ्टर 5 इयर्स उसके दोनों बच्चों के एज का सम क्या होगा? y प्लस 10 इयर्स. ओके, अभी इन फादर्स एंड सन्स एज का सम फाइंड करने का, देन द सम ऑफ देयर एजेस 5 इयर्स हेंस, उसके बाद 5 साल के बाद उन दोनों का मतलब ये तीनों का सम क्या होगा? तो क्या होने वाला है? x प्लस 5 प्लस y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 15. 5 प्लस 10 15. तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, x प्लस y प्लस 15. Okay, so now let's go on another question. For a given pair of linear equations in two variables, if a1 is equal to a2 is not, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the equation has, चलो ये आप खुद से आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई योरसेल्फ, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना. उसके बाद द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई एंड 40. तो एक ट्राइंगल है, उसका एक एंगल है x, दूसरा है y और तीसरा है 40, और इन दोनों का सम क्या होने वाला है? 180. ओके, तो x प्लस y इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज 140, राइट? ओके, नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 30 दिया गया है और हमें एक इक्वेशन मिला है x प्लस वाई इक्वल टू 40. जस्ट एड दिस टू इक्वेशन y y कट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 30 प्लस 40 दैट इज 70, x इक्वल टू 70 बाई 2 दैट इज 35. so x इक्वल टू 35 डिग्री. ओके, x मिल गया, y हमें मिल ही जाएगा. कैसे? x माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 40 दिया है, अगर x 35 है तो y कितना बचा? आपको पता चल ही हो गया होगा, y क्या आएगा? 5 डिग्री. ओके, सो x हमें 35 डिग्री मिलेगा और y क्या मिलेगा? 5 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू m एंड y इक्वल टू n are graphically represents lines which are, so this is also one of the interesting question कि x की हमें pair of इक्वेशन दिया है, x इक्वल टू m एक इक्वेशन है. ओके, सो पहले इसका ग्राफ कैसा आएगा ये हम देख लेते हैं. ओके, सो ये x है, ये x एक्सिस है, y है. x इक्वल टू m का ग्राफ कैसा होता है? x इक्वल टू m का ग्राफ ऑलवेज y के पैरेलल आएगा, y एक्सिस के पैरेलल आएगा. तो ये हमारा ग्राफ होगा x इक्वल टू m, क्योंकि ये पॉइंट हमारा होने वाला है, दिस पॉइंट इज m, राइट? दिस पॉइंट इज m. ओके, अभी x इक्वल टू n का ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू n, तो y इक्वल टू n का ग्राफ x के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल होने वाला है.
सो ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू n, जहां पे ये पॉइंट है ये n होने वाला है। लेट्स से x इक्वल टू 3, तो वो लाइन 3 में से पास होगी और x के परपेंडिकुलर होगी। और y इक्वल टू सपोज 5 है, y इक्वल टू 5 है तो वो y में 5 में से पास होगी और y के परपेंडिकुलर होगी, राइट। ओके, और ये दोनों लाइन यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट n। ओके, सो इंटरसेक्टिंग एट, ये दोनों लाइन x इक्वल टू m एंड y इक्वल टू n आर इंटरसेक्टिंग एट m, सॉरी mn, x है m, y है n, तो mn इंटरसेक्टिंग एट mn। ओके, डी वाला आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे nm लिखा है वो करेक्ट नहीं है, डी वाला इंटरसेक्टिंग एट mn। ओके, उसके बाद है if 27x plus 63y equal to 45 and 63x plus 27y equal to 135 then x plus y equal to blank। ओके, सो ये क्वेश्चन अभी हमने जो सॉल्व किया ऐसा ही है। सो आप ये खुद से कर सकते हो, ट्राई योरसेल्फ, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना पड़ेगा। ओके, जो भी आंसर है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर से देना। और आपको अगर ये वीडियोस में अगर आपको कोई आपका सजेशन है और आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, तो वो भी मुझे ज़रूर से बोलना। सो मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा और आपको आपका जो भी डाउट्स है वो भी 100% वो सॉल्व करने का मेरा पूरा प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई हो और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।